Hello everyone, I'm Jayashree Sahu, Assistant Professor Microbiology. Today I'm going to discuss topic electron transport chain and oxidative phosphorylation. This topic is from MSc second semester paper 2 of unit 3. What is electron transport chain? Catabolism of energy rich carbohydrates like glucose, fatty acid, amino acid involve the removal of hydrogen, and this hydrogen is accepted by NAD plus, FADH, and this reduced coenzyme passes through electron transport chain and they transport electron in the channel present in electron transport chain, and this transportation of electron release free energy, and this free energy is utilized for the phosphorylation of ADP to ATP, and this whole process is called as electron transport chain. Definition: what is electron transport chain? Electron transport chain means it's a series of complex present in electron transport chain within mitochondria, which transport electron from NADH FADH2 to final electron acceptor oxygen, which is finally reduced to H2O, and this transportation of electron couples with the formation of ATP. Next is oxidative phosphorylation. What is oxidative phosphorylation? In electron transport chain, oxidation of NADH and FADH2 is occur, and this oxidation is coupled with the phosphorylation of ADP to ATP. Means in oxidative phosphorylation reaction, there is two steps present. First is oxidation of NADH and FADH2, and second is the phosphorylation of ADP to ATP. Both reaction combinedly or collectively called as the oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation occur in the mitochondria of eukaryote, and in prokaryote it is present in plasma membrane. This is the structure of mitochondria. Electron transport chain and ATP synthesizing system are located in the inner mitochondrial membrane. Mitochondria have 5 distinct parts. First is the outer mitochondrial membrane. Second is the intermembrane space. Next is the inner mitochondrial membrane. Next is the matrix, and this folded part is the cristae. And ETC and ATP synthesizing system are located inside this matrix area. And here TCA cycle, beta oxidation are also occur in mitochondria. Mitochondria are the center for the metabolic oxidative reaction to generate reduced coenzyme, which in turn are utilized in electron transport chain to liberate electron in the form of ATP. That's why mitochondria is regarded as the powerhouse of cell, because in mitochondria ATP is generated. This is an overview how ATP is formed. यहाँ पे अगर हम ग्लाइकोलिसिस का ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल लें, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सेल्स में होगी, साइटोसोल में होगी, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे 2 NADH फॉर्मेशन होगा और 2 ATP फॉर्मेशन होगा. 2 ATP जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हुआ है, जो डायरेक्ट सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा. 2 NADH जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू चेन के थ्रू यह ATP में कन्वर्ट होगा. फिर जब पायरुवेट जो है वह नेक्स्ट प्रोसेस के लिए और ब्रेकडाउन के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, फिर वह एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा. इस कन्वर्शन प्रोसेस में 2 NADH का फॉर्मेशन होगा, 2 पायरुवेट से 2 NADH. ये भी
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। फिर असाइल कोएंजाइम ये जो है क्रेब साइकिल या सैट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा। क्रेब साइकिल में 2 ATP जो है डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से फॉर्म होगा और यहाँ पे 6 NADH 2 पायरुवेट से या 2 एसिटिल कोएंजाइम ए जो सैट्रिक एसिड साइकिल में एंटर किया है उससे 6 NADH का फॉर्मेशन और 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा ATP के फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। In this transport of electron, both reduction and oxidation reaction occur. When electron is transferred from one molecule, there is oxidation reaction occur and which accept electron where reduction reaction is occur. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली यहाँ पे होगा जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली ऑकर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH एंड FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होगा एंड दे कन्वर्टेड टू NAD प्लस एंड FAD and donate electron and proton. Then this electron transported from series of complex in electron transport chain to final acceptor oxygen and convert oxygen to H2. And proton which is present in matrix of the mitochondria which is pumped out to intermembrane space by the complex present in the electron transport chain. When electron is transported in series of channel, there is a release of free energy and this free energy is utilized for transportation or for pumping out of the proton from matrix to the intermembrane space. इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब प्रोटॉन वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे मैट्रिक्स कंपैरिजन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा और वही इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होगा जिससे एनर्जी जो उसमें जो निहित रहेगी उससे जो ADP का फॉस्फोराइलेशन होगा ATP में वह कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे प्लस पंपिंग आउट ऑफ प्रोटॉन दोनों वर्क करेंगे। तो इसमें 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से जो 3 कॉम्प्लेक्सेस जो है रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं प्रोटॉन को पंप करेंगे और एक जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो प्रोटॉन का पंपिंग नहीं करता है। 4 कैरियर के अलावा यहाँ पे 2 मोबाइल कैरियर और प्रेजेंट होता है। 4 कॉम्प्लेक्स हैं उनके अलावा 2 मोबाइल कैरियर और प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज द यूबिक्विनोन और कोएंजाइम Q एंड सेकेंड इज द साइटोक्रोम C। ये जो है मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होते बल्कि ये इनर मेम्ब्रेन में ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन को वन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। This is the diagram of the electron transport chain. There are 4 complexes present in the electron transport chain. First complex 1 is the first entry point and complex 2 is the second entry point. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है NADH के लिए एंट्री पॉइंट है और कॉम्प्लेक्स 2 जो है FADH2 के लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ से इनका ऑक्सीडेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेंगे और NADH में कन्वर्ट होंगे और यह FAD में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर प्रोटीन के थ्रू और कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये ट्रेवल करते जाएगा और फाइनली उसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हर स्टेप में एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है और इसी एनर्जी फ्री एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन आयन है वह पंप आउट होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउन द हिल। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब डाउन द हिल ये ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी लेवल उसका डाउन होते जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में यहाँ पे फ्री एनर्जी जो है रिलीज होता है और वही फ्री एनर्जी जो है एटीपी के सिंथेसिस में वो यूटिलाइज किया जाता है। तो इसको स्टेप से इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है कि हर स्टेप में इसकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होती जाएगी, ये हायर एनर्जी रहेगा और वह धीरे धीरे यहाँ पे लो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे वाटर में यह फाइनली चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट करने के बाद। और हर स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूटिलाइजेशन एटीपी के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अब सभी कॉम्प्लेक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज द NADH और कॉम्प्लेक्स 1 NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेस भी कहा जाता है और NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में NADH डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा, प्लस इसमें यहाँ पे आयरन सल्फर सेंटर रहेगा जिसमें 6 नॉन हीम आयरन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NADH के लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे NADH जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, NAD प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है उसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वह आयरन सल्फर सेंटर से होते हुए वो मोबाइल कैरियर प्रोटीन क्यू या कोएंजाइम क्यू में यह ट्रांसफर हो जाएगा। और दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जिसका यूटिलाइजेशन कर यह कॉम्प्लेक्स 1 मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप आउट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वह 4 प्रोटॉन पंप करता है एक NADH से। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 जिसे सक्सिनेट क्यू ऑक्सीडोरिडक्टेस भी कहा जाता है। इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट रहता है, प्लस इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें जो प्रेजेंट रहता है वो है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें 3 आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होता है। इट लैक्स प्रोटॉन पंपिंग एक्टिविटी एज दिस रिएक्शन रिलीज लेस एनर्जी। जब क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्शन होता है तो यहाँ पे FAD जो है FADH2 में कन्वर्ट होता है। यही FADH2 का कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे FADH2 जो है और उसका ऑक्सीडेशन होगा वो FAD में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे चला जाएगा, ट्रेवल कर लेगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जो प्रोटॉन जो है इसके थ्रू पंप आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो लेस रहती है। नेक्स्ट इज द कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनोन। यह एक मोबाइल कैरियर प्रोटीन है। इट डज नॉट बाइंड टू द मेम्ब्रेन and it carries electron from complex 1 or complex 2 and it travel through inner membrane and reach to the complex 3 and bind there and transport electron from complex 1 or 2 to the complex 3। यहाँ पे complex 1 से इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू जो है जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन है वह उसको एक्सेप्ट किया और ये ट्रेवल करेगा इस मेम्ब्रेन में और यह कॉम्प्लेक्स 3 में जाके बाइंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में जाके बाइंड होने से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज द साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 3 भी कहा जाता है। इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेस भी कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेगा वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेस है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। फर्स्ट इज द आयरन सल्फर protein, next is the cytochrome B and next is the cytochrome C। Cytochrome are the protein containing heme group.
इलेक्ट्रॉन जब NADH या फिर FADH, NADH या कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से जब ट्रांसफर होता है तो वह मोबाइल कैरियर प्रोटीन कोएंजाइम Q उसको एक्सेप्ट करके साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स में उसको ट्रांसफर करता है। और इस कॉम्प्लेक्स से अटैच साइटोक्रोम C है जो बाइंड नहीं रहता साइटोक्रोम C से, बट इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये ट्रेवल करेगा मेम्ब्रेन में और वह कॉम्प्लेक्स 4 में जाके उससे बाइंड होके कॉम्प्लेक्स 4 को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। तो नेक्स्ट जो है साइटोक्रोम B से जो कनेक्टेड है वह साइटोक्रोम C है। वह मोबाइल कैरियर प्रोटीन है जो इसमें फर्मली अटैच नहीं होता, यह ट्रेवल करके एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है। साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स जो है ये भी मेजर प्रोटॉन पंपिंग कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है 4 प्रोटॉन पंप किया था मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उसी तरह से साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स भी 4 प्रोटॉन को यह पंप करेगा। नेक्स्ट इज द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स 4। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसमें साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होता है, 2 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ थर्ड जो है सब यूनिट और उसमें प्रेजेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स 4 के एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है यह हम फाइनली जब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को यह नेक्स्ट ऑक्सीजन तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन तक पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होके H2 में कन्वर्ट होता है। यह कॉम्प्लेक्स जो है 2 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर या पंप आउट करता है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है 4 प्रोटॉन को पंप आउट किया, कॉम्प्लेक्स 3 जो है 4 प्रोटॉन को पंप किया, कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 2 प्रोटॉन को पंप किया। तो इस तरह से 1 NADH से टोटल 10 हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन जो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट होगा। और यह 10 हाइड्रोजन जो है वो रिवर्स फिर से मैट्रिक्स में 5th कॉम्प्लेक्स या ATPase कॉम्प्लेक्स के थ्रू फिर से एंटर करेगा और इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका ADP से का फास्फोराइलेशन होगा उससे और ATP का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे प्रोटॉन को पंप आउट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटॉन पंप आउट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन पंप आउट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो प्रोटॉन को पंप आउट नहीं कर रहा है। जब पंपिंग आउट होती है प्रोटॉन की तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है इसी को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहेंगे। यहाँ पे चार्ज्ड मेम्ब्रेन एक्टिवेटेड चार्ज्ड मेम्ब्रेन है उसी को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहेंगे। इसी के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉम्प्लेक्स 5 या ATPase कॉम्प्लेक्स एंजाइम में एंटर करेगा और इसको रोटेट करेगा इस एंजाइम को, और इस रोटेशन से केमिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसका यूटिलाइजेशन ADP के फास्फोराइलेशन में होगा और वह ATP में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन। In oxidation of NADH and FADH2 occur and this converted to NAD plus FAD and finally H2. And next is the phosphorylation step. ऑक्सीडेशन स्टेप जो है वो फॉस्फोराइलेशन से कपल्ड होगा, ऑक्सीडेशन होगा NADH FADH2 का, तभी ADP का फॉस्फोराइलेशन होगा और ATP में का फॉर्मेशन होगा। There is 2 ways to synthesize ATP. First is oxidative phosphorylation and second is the substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation जैसे ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट से डायरेक्ट ADP या GTP में फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है, जिसे ATP और GTP का फॉर्मेशन होता है, इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो कैटाबॉलिक पाथवे जो है मेटाबॉलिक पाथवे में NADH और FADH2 का जो फॉर्मेशन हुआ है
वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तब जाके वहाँ पे एटीपी में वह कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। Mechanism of oxidative phosphorylation. There was so many hypotheses given to explain oxidative phosphorylation, but most important among them were chemical coupling hypothesis and the chemiosmotic theory. First is the chemical coupling hypothesis. This was given by the Edward Slater in the 1953. ये जो हाइपोथेसिस है वह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एनालॉग है। मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में a series of phosphorylated high energy intermediate are formed which directly utilize to synthesize ATP. लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उतने नहीं मिल पाए, तो ये उतने मान्य ये नहीं रहा। Next is the chemiosmotic theory. Chemiosmotic theory was developed by the British biochemist Peter Michael. According to this theory, when electron is transported in electron transport chain, in every step there is a release of free energy, and this free energy coupled with the pumping of the proton from मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जब मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन पंप होगा, प्रोटॉन के पंप होने से यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, मैट्रिक्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल डेवलप होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होने से वहाँ पे एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन वहाँ पे बनेगा। इस एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है फिर से रिवर्स वो पंपिंग इन होगा मैट्रिक्स में एटीपीएस एंजाइम के थ्रू। जब एटीपीएस एंजाइम में यह एंटर करेगा, उसमें एक चैनल है प्रोटॉन को एंटर करने के लिए, जब एंटर होगा तो एटीपीएस एंजाइम में रोटेशन होगा। रोटेशन होने से वहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही केमिकल बॉन्ड एनर्जी से एडीपी का फॉस्फोराइलेशन एटीपी में होगा। दिस इज कॉल्ड एज द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, जिससे जो प्रोटॉन है वो पंप आउट होगा। क्यों पंप आउट होगा, ये एनर्जी कहाँ से लेगा? जब इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर हाइड्रोजन आयन जो है वो उसका पंप आउट होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। मैट्रिक कंपैरिजन में फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। फिर यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसके कारण इसी फोर्स के कारण प्रोटॉन जो है फिर से ये पंप बैक होगा यहाँ पे एटीपीएस एंजाइम के थ्रू। एटीपी सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स में 2 मेन सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज द F0 सब यूनिट। दिस इज द F0 सब यूनिट। इट इज प्रेजेंट embedded within the membrane, and next is the F1 subunit. It is protruded in the matrix. जो F0 सबयूनिट है इसमें प्रोटीन चैनल रहेगा, प्रोटॉन चैनल रहेगा, जिससे प्रोटॉन इसमें एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो स्टॉक, ये जो दोनों पोर्शन है F0 और F1, इसको कनेक्ट करके रखा है स्टॉक। फिर ये रोटेट होगा और एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा। इसके रोटेशन से जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इसी केमिकल बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्शन से एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा एटीपी में। मतलब 1 NADH से 10 प्रोटॉन जो पंप आउट हुए हैं वो 10 प्रोटॉन फिर से पंप इन होंगे, तो यहाँ पे 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 प्रोटॉन मस्ट पासेस थ्रू द ATP सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म 1 ATP मॉलिक्यूल। इस तरह से एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेटिक अटैच होगा और वह एटीपी में कन्वर्ट होगा।
समरी ऑफ द टोटल एटीपी प्रोडक्शन इन द लिविंग सेल। हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस या 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से जो सबस्ट्रेट लेवल से एटीपी का फॉर्मेशन है वो 2 है, और क्रेब साइकिल से 2 है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल से 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे FADH2 और NADH जो फॉर्मेशन हुआ वह सबस्ट्रेट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था। पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्शन में 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था। क्रेब साइकिल में 3 NADH का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब यहाँ पे 10 NADH का फॉर्मेशन हुआ था, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यह 30 ATP में कन्वर्ट होगा। और क्रेब साइकिल में 2 FADH2 फॉर्मेशन हुआ था, जो 4 ATP में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 34 ATP का फॉर्मेशन होगा, और 4 ATP का फॉर्मेशन जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होगा। मतलब टोटल ATP जो है वो 38 रहेगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। These are the references. Thank you.